This video I'm going to show you that how you can configure WAN connection at your MikroTik router board. So don't worry if you have dynamic internet connection or static internet connection. You can configure both internet connection at your MikroTik. So let's take a look. I created one diagram for you. This is beneficial for you. So let me tell you that what we have to do in this diagram. So this is our internet connection which I created. So this is our internet connection which I have created here, and here you can see our internet connection, and this is our MikroTik router board. This is our MikroTik, and where we have here two laptops which is connected in LAN. And what we are going to do, first of all we will do this. We have and what we are going to do in and what we are going to do in this session, first of all we will do for these activity. And here you can see that this is the first question, how we can configure dynamic IP address at your MikroTik router board, and the second one is how we can configure static IP on your MikroTik router board. And there is a third question is we have to create one bridge, and on that bridge we have to make the DHCP server. After that we have to create one netting rule which will transfer our LAN data to internet. So I hope you understand our questions, and I will let you know that how you can create a multiple DHCP on your MikroTik router board. First I will create on bridge, and second one I will create on VLAN. So we have to write here, I'm going to write our fifth task, which will be DHCP server. Oh, I have to do our font small here. So this is our task. We have to create DHCP server. Let me correct it. DHCP server. Okay, so we will create two DHCP server on our MikroTik router board, and we will start from here. Let me show you. We will start from here. So let's do it. And I don't have the MikroTik router board connected in my laptop, so we will do it in our VMware. I'm going to open my VMware workstation. I have installed already. If you guys want to install it, so please comment below of the video so that I will make the another video for you, how you can configure the workstation and how you can configure internet or MikroTik router board or multiple firewalls or switches or routers in VMware workstation. So I have installed the Eve here. I'm going to on it, and we will do our all 4 or 5 tasks in our virtual VMware. So here we can see our Eve is opening, and yes, it is starting. So this is very helpful application for us. If you can install, just download from the Google, and if you want, so I will give you the link how you can download and how you can install. I will make another video if you guys want. So this is our IP which we have to search in our Mozilla firewall, 192.168.10.192. So let me on my Mozilla, and here I have to search 192.168.10.129. Yes, so here I have to log in it admin, and the password is, so this is our lab. I'm going to take here MikroTik, take the MikroTik, and we'll keep one MikroTik here. We will follow our this diagram. See here, we will follow this diagram completely. Okay, so what we have to do, just I'm going in our lab, and here I have to get the internet
management cloud, and just OK here. And now I have to take PCs. So Windows PC, and we need two PCs, and done. So here we have two PC. Now we have to connect all these devices. So I'm going to connect internet to our MikroTik device, and MikroTik to second PC, and MikroTik to third PC. So this is only name, that PC2 or PC3, we can consider it PC1, and we can consider it PC2. And this is the internet, which you can see here, SpectraNet. Okay, so don't worry about it, don't worry about the names. So just, this is our diagram, this is complete diagram. So now we need to on our devices, and I'm going to on it. Start all my nodes means all my devices. So it is starting slowly. So after starting this, let me show you that it is on completely or not. And if I will click on my MikroTik, so I can open it in my putty. If you have installed the putty, so you also can open it in your putty, and it is rebooting right now. So I'm not able to connect it. It will take, yes, now it is connected. The admin is a login name, and this is new MikroTik, so we don't have any password. So just I'm click enter, and yes, now MikroTik is opening. So this is the CLI. I'm not going to show the CLI. So let me show you in my, GUI. So now I have to open the Winbox, and we'll see. Yes, our MikroTik is here. Now I can connect it, and let's check that it is opening or not. Yes, it is successfully open. Now what we have to do, first of all, we have to reset it. Okay, reset configuration, no default. We don't want to keep the default configuration in our MikroTik, so we will check on this option, no default configuration, rest configuration, reset. Reset configuration, and just yes. Here you can see, do you want to reset all your configuration and reboot? Yes, we want. So now it is erasing all default configuration from our MikroTik, so that we can configure as per our requirement. So once you will purchase the new MikroTik from any shop, so you can see that default configuration is available, always available in MikroTik, and the LAN IP will be 192.168.88.0. And I will show you in my next video that how you can identify that router is configured from company or not. The default MikroTik default IP is 192.168.88.1. Always remember it. This is very good question. And here you can see that there is no IP address, and it is showing the MAC address and the IP address. Identity is a MikroTik, and here you can see the version. I will let you know how you can upgrade your MikroTik also. So let's start the video, and first of all we will finish our task, today's task. After that we will go further. So let me show you that how you can. First of all, we will check that what is our first task. First task is how to configure dynamic IP address WAN connection. Okay, so let me show you that if we want to create WAN, and we need to choose the port. All ports are configurable. So the thing is that we have to decide that which port will be WAN, or which port we want to create as a LAN or for the LAN network. So suppose I am going to keep this interface as a WAN connection. So I am going to write here WAN 1. Okay, so just I'm changing the name. There is nothing for the configuration. I'm changing the name for my remembering, for my
memor just I'm changing the name that this is the WAN 1 connection. And if we want to give the comment, so we can give the comment here that we can remember it, this is Ethernet 1. Okay, so just click and OK and apply and OK. So we didn't start any configuration yet. So the thing is that this is our WAN 1, and so the thing is that this is our WAN 1, and we have created the WAN 1 on Ethernet 1 port. So the first question was how to configure dynamic IP address. Okay, dynamic IP address. So what we have to do, you should know that what is dynamic and what is static. Static will be our second question. So let's take a look how we can create dynamic WAN. Just we have to go, let me show you again. Okay, so just go on IP and click on DHCP client. Client means it will not give you the IP address, it will take the IP address from DHCP server. So you can understand that here automatically selected the Ethernet 2 as a DHCP client. So I'm going to delete it, and we have to create DHCP client WAN 1 port. Here we have to create, here we have to select WAN 1 and apply and OK. Okay, and here you can see that the IP is 192.168.10.128, which is getting where, which is getting from the internet connection. This is our dynamic internet connection which is giving the IP address, and DHCP server is on this network for our MikroTik router board only, for our this Ethernet 1 connection, for our Ethernet 1 port. Okay, so let's go on MikroTik. Here you can see, let me show you that what is the gateway, IP and routes. And here you can see that this is dynamic. If you keep cursor here, so here you can see that D for dynamic, A for active, and S for static. So this is the dynamic gateway which is added by DHCP client port. So let me show you the IP address. This is our gateway. Okay, so let's try to ping it. Are we able to ping our gateway or not? 192.168 and 10.2. Yes, we are able to ping it. Let me show you that we are able to ping Google or not. So I'm just pinging the 888. We are not able to ping Google. Okay, so let's try another DNS 1.1.1.1. so we are not able to ping it. So let me check that I have enabled the netting at our so at our VMware, and here we can see that did the we have done the netting for our internet, and netting is done here. So let me try to ping our gateway. Are we able to ping our gateway or not? So just I am going on our terminal, ping 192.168.10.2. Yes, we are able to ping it. And now I'm going to ping our DNS 8.8.8.8. Yes, I'm able to ping it. So let's try to ping the google.com. Are we able to go
to the Google or not, google.com. So yes, we are able to ping it. So here we can see we didn't do the more configuration here. We just created the DHCP client, which is here DHCP client, and here you can create if you want to, if you want to disable it, so you can disable it from here or enable it from here, or if you want to delete, so you can delete from here. And add, so just click on add button and select your interface and apply and okay. Okay, so this is our first question, which is done. Now we have to do our another question. So let's start. Our another question will be how to configure static IP address on our MikroTik router board. So let me show you that how you can configure it. And I'm going to delete DHCP client. So here you can see there is nothing. Now I will create DHCP, sorry, now I will create the static IP address at interface 1. So just let me show you again. Just go IP and address. Here you have to add and 192.168.10.128, and here you have to give the subnet mask of your network. So it is 24. I'm giving 24. So here you have to select the interface, which is WAN 1 for me right now. Apply and okay. IP is configured on our interface, and for going to the internet or for going to the gateway, we need to give the gateway, which is mandatory. Before giving the gateway, if you are trying to ping anything from your MikroTik router board, so it will show you this, the root, no root. Okay, so let me show you again. No route to host, there is no route to go to this IP. Are you getting my point? Yes. So just we have to configure our gateway, go IP and routes, and here you have to add one gateway, 192.168.10.2, and apply and okay. Now if we will ping it, yes, we are able to ping because we have given the gateway to our MikroTik, that from where you have to go for this IP address or for any IP address. Okay, so and this is, don't confuse about it. If you will configure any IP address statically or dynamically, so it is creating automatically. It is here you can see I'm going to disable it, so this will remove. Okay, I'm going to enable it, so here you can see it came again. Okay, so this is our static configuration, which is done. Now let me show you again that what you have to do, and leave it. Just go IP and address, and here you have to create. If you want to create another WAN, and when one is finished, so just go on the interface and keep here Ethernet 2 as a WAN 1, change the name WAN 2 and apply and okay. And IP address, add 192.168.20.128/24, select here WAN 2 and apply and okay, and go again in routes and give the IP address, sorry, give the gateway. So 192.168.20.2, I'm guessing this IP address. And once you will put the cable on Ethernet 2 internet connection cable on your MikroTik port number 2, it will be reachable. Right now we don't have any another internet connection, so we have created just I shown you that how you can create another WAN at your MikroTik router board. So I'm going to delete it, and this is the 20 network, so I'm going to delete it. Here you can see we have done both internet dynamic and static connection. If you have any doubt, you can comment me, I will give you an answer. Now I'm going to do our third task. Before going there, we have to return our port WAN to Ethernet. So ether ethernet to apply
and OK. Just you have to change the name so that you can understand that what is our WAN connection and what is our what is our WAN port and what is our LAN port. Okay, don't worry about it. And so let's move further, and this is our third question, that what you have to do here. And the third question is how to create DHCP pool on bridge. So before creating the DHCP pool, we have to create the bridge. So just go on bridge, and here bridge add, and bridge name will be LAN network. I'm giving the name only. This is the name of our bridge. Okay, so this is the name, and apply and OK. How many ports we want to add in this bridge? Here we have to select. Suppose I am selecting port number 2 in this bridge, and another is port number 3, and apply and OK. So this two port now the part of this bridge. Okay, so now we will create the DHCP server on this bridge. Go IP and DHCP server, and there is two way to create the DHCP server. The first one is a here which is very shortcut, and the another one is long term. The manually you have to do everything. So I will show you both configuration, how you can do the DHCP configuration from two way. Okay, so now I am going to create the DHCP server from here. Just go here IP and DHCP server, and here you have to click on DHCP setup. Okay, so just you have to select where, here you have to select on which port you want to create a DHCP server. Okay, so I'm going to select the bridge, and next, so IP will be 10.5.50.0/24. Here you have to give the network, not the IP address. Okay, always remember, many people does this mistake. Always remember, many people do this mistake frequently, that they are giving the IP address here like this. So this is showing you that this is wrong. It is showing in red color, DHCP server, DHCP address space. Okay, if you will give the 0 here, it is now blue color. Okay, so just click next, and this is our gateway. It is showing that this is the gateway according to your network. If you want to change your network, you can just modify it. So suppose I am giving the 100 IP address as our gateway, and just click on next. It is showing that DHCP relay is 100, so I am going to disable it. No, I am creating a DHCP server, not a relay. So just click on next. Now it is showing that 10.5.50.12, 10.5.50.99 one pool, and 1012.224 second pool. So I am going to disable one pool, and I want to create one pool for my full length. Okay, 10.5.50.1 to 10.5.50. So I'm going to click next. Now it is showing that 10.5.50.1 to 10.5.50.254, and next. Okay, so I'm going to click on next, and here you can see that it is showing two pools, 1 and 99. Sorry, 10.5.50.1 to 10.5.50.99 and 1012.254. Between both pool, it is missing the 100, which is our gateway. Okay, so we have put the gateway from between our pool, so it is excluding that IP address which we have selected for our gateway. So just I'm going to click on next, and DNS server, yes, we want to provide
DNS server, DNS IP address with our IP. Okay, just click on next, and it is showing the lease time 10 minutes by default, so I am going to do it for 12 hours. Okay, next, and setup is complete successfully. It is showing in your red color. Now we have to give the gateway in our address. So this is the gateway for our LAN network. Add, and here 10.5.50.100/24. I have already told you that you have to give the subnet value, CIDR value. I have already told you that you have to give here CIDR value, and here you have to select your interface, which is our bridge, and apply and OK. Now you can check here, it is black now. And this is our complete DHCP server, which I have shown you. So I hope you understood this way of the how to make the DHCP server on MikroTik router board. Now we have done our third task, so now I am going to do our fourth task. How to create NAT for LAN to WAN interface, LAN to WAN traffic. So let's go IP and firewall, and in NAT here you have to add, and here you have to select source NAT, and source IP will be our LAN IP 10.5.50.0/24. It is here you are defining that this is our source pool. If you will get any IP address, you have to forward it on our internet connection, and just go on action and select here masquerade rule. Masquerade rule means your LAN traffic will go on internet. Okay, if you are not creating this rule, then your LAN user will get the IP address, but they will not be able to access the internet. Okay, so here you have to always create this NAT rule, which is very important for LAN users. Otherwise your LAN user will not be able to access the internet. So just go on action, and here you have to select the masquerade rules and apply and OK. This is the rule which will forward the traffic, LAN traffic, to the internet. Okay. So let's go further, and now we have to create the VLAN. Okay, VLAN, and we have to create the DHCP server on our VLAN. So let's go on MikroTik, and so I hope you understood that why we have created the LAN, why we have created the netting here. So I'm going to click it on interface and VLAN. Just you have to add the VLAN here. I'm going to give the name VLAN 10 only, and VLAN ID will be 10. I'm going to create the VLAN 10, and this you have to select the interface, that where you want to create, on which port you want to create the VLAN 10. Okay, so I'm going to select Ethernet 4 and apply and OK. So on MikroTik router board, just you have created the VLAN. There is nothing in the configuration, and we didn't configure any DHCP or any IP address on that VLAN. Just we have created the VLAN on Ethernet 4th. Okay, I hope you got it, and let me show you again that what I have to do. Go on interface and VLAN, and here you have to add. If you want to make another VLAN, so just click on add,
and give the name. Suppose I'm giving the name VLAN 20 and ID will be 20 and port number. Suppose I am creating a VLAN in our bridge. Okay, apply and okay. So let's have a look how we can create a DHCP server on our VLAN. I will show you the another way how you can create a DHCP server. Okay, so for DHCP server, what we have to do, on any firewall you are using MikroTik or any other firewall, you have to do always these 4 steps. You have to follow these 4 steps. First will be gateway, and second will be pool, and third will be network, and fourth will be netting. Okay, these 4 steps you have to follow for any router board. These 4 steps you have to follow for every firewall. So let's have a look for it. And this is our first step. We have to give the gateway for our DHCP server, and just go on MikroTik IP. I already told you that if we are giving the gateway for our WAN connection, so we have to go in routes. Okay, if we are giving the gateway for our LAN network, so we have to go in IP and address. Always remember it. Just click on add. I'm creating another network here, 192.168.20.1/24. Okay, I have to select here interface VLAN 10, apply and OK. The second one is I have to go for our pool. Here we have to create the pool, and pool 192.168 2 dot sorry 20.2 to 192.168.20.254. This is our pool, which will give the IP address between this range. And the another one is network. Here we have to create one network. Here we have to select our VLAN 10 and the lease line. The lease time will be 3 hour, and pool will be 1 because we have created the pool. Here you can see that name pool 1. Here we have to select the pool 1. Okay, and just apply and OK. Here we have to give the network. Network will be 192.168.20.0/24, and gateway will be 192.168.20.1 only. Okay, apply and OK. This is our complete DHCP server. So the first one is DHCP server we can create from here, DHCP setup, and the second one is we can create the manually. We want to give the DNS from our IP address to our host, so we can give the DNS here. Don't worry, just I'm giving the 8.8.8.8, and another one will be 1.1.1.1. okay, apply and OK. So we have created 2 DHCP server, first one on our bridge and second one on our VLAN. Okay, I hope you guys understand everything in this video, how you can do the. Let's take a fast look for our configuration. If you want to add dynamically connection, if you want to add dynamic WAN connection at your MikroTik, so just go IP DHCP client and add here, and select the interface, any interface which you want to configure as a WAN, dynamic WAN. Just select the interface and apply and OK. Okay, it will get the IP address automatically.
So here you can see that it got the IP address automatically, and I'm going to delete it. And for static connection, you have to follow two steps only. Go IP and address and add here, and here you have to give the public IP address, not mask. Okay, 192.168.10.128 and CIDR value /24. Here you have to select the interface, apply, and OK. So it is showing that could not add address, already have such address. वो address already we have, that which we are configuring, that address is already configured on same interface. So I wanted to show you only here on this. So I have shown you, and second one will be go IP and routes, and here you have to add the gateway. Just click on gateway. You have to give the gateway which ISP will give you 20.2 and apply and OK. Here you can see that gateway is added automatically. Okay, the gateway is added, so don't worry, I am going to delete it. And I have already told you that what you have to do for your DHCP server. So this is this was our diagram which we have completed. So if you have any doubt, you can comment me, I will give you an answer. Bye bye. So I will make my next video, and in my next video I will show you that the multiple things. Suppose, let me show you that what we are going to do in my next video. One important thing, that if you didn't subscribe my channel yet, so please subscribe my channel. I will give you the interesting videos networking related. So what we are going to do in my next video, I will show you IP routing in my. So this was our configuration. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज से हम वीडियो की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें माइक्रोटेक का पूरा कोर्स कवर करेंगे हम, और इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको माइक्रोटेक की A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बात और, कि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज़ में नहीं खींचने वाला, बहुत सारी वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं कुछ ही वीडियो बनाऊँगा, लेकिन लेंदी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग अगर इस वीडियो को देखें तो 1, 2, 4 या 10-20 वीडियो में कोर्स कवर हो सके। मैं लंबी से लंबी वीडियो बनाना चाहूँगा, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना कंफर्टेबल भी नहीं होगा, और उससे ज़्यादा वीडियो और उससे ज़्यादा स्टडी कोई कर भी नहीं पाता। तो आधे घंटे की इस वीडियो को आपको कवर करने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। तो मैं आधे आधे घंटे या 1-1 घंटे की वीडियोज़ बनाऊँगा, जिसमें मैं 4-4, 5-5 टॉपिक एक साथ कवर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले तो ये बताऊँगा कि वैन सेटअप कैसे करते हैं, इंटरफेस का नेम कैसे चेंज किया जाता है, और इंटरफेस की बैंडविड्थ कैसे सेट की जाती है, और आईएसपी का कनेक्शन हम कैसे सेट करेंगे, उसके बाद हम लैन कनेक्शन कैसे बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट हमारे लिए 2 टॉपिक है कि इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनेगा, आईएसपी का इंटरनेट कनेक्शन, और दूसरा हमारे लिए नेटवर्क, लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कैसे बनता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क हम किस लिए बनाते हैं, ताकि अगर आप सोचिए कि आपके पास कुछ यूज़र्स हैं, मैं आपको एक पेंट पे ये शो कराता हूँ। ये मैंने पेंट ओपन कर लिया है, और आप इसको ऐसे समझिए कि आपकी एक लोकेशन है, ये आपकी एक लोकेशन है जहाँ कम से कम 100+ यूज़र बैठते हैं। कितने यूज़र? 100+। तो मैं काउंट करता हूँ कि 100 यूज़र्स, ठीक है। अब 100 यूज़र अगर यहाँ बैठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग इंटरनेट के लिए ही यहाँ बैठेंगे। तो जब हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, तो जो अब हमारा यहाँ हम माइक्रोटिक राउटर बोर्ड लगाएंगे ना, उस राउटर बोर्ड के ऊपर सबसे पहले तो हम एक, ये हो गया हमारा माइक्रोटिक, तो हम इसको बना लेते हैं माइक्रोटिक, ओके। और दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि क्लाउड। तो मैं क्लाउड देख लेता हूँ, क्लाउड नहीं है तो ये ले लेते हैं हम इसकी जगह, और ये समझ लो आप इंटरनेट कनेक्शन है हमारा,
ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरनेट, इंटरनेट, और इन दोनों को अब हमें क्या करना है, जोड़ देना है। इंटरनेट से माइक्रोटिक के ऊपर इंटरनेट आया, और माइक्रोटिक से हमारे सारे के सारे यूज़र्स कनेक्ट होंगे। तो ये जो हमारा नेटवर्क एरिया बनेगा, ये बनेगा हमारा क्या, ये बनेगा हमारा लैन, ये बनेगा लैन। और लैन क्या होता है, लैन होता है, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क में जो हम नेटवर्क तैयार करेंगे वो बनाएंगे हम अपने लैन यूज़र्स के लिए। ये जो हमारे लिए नेटवर्क पूरा बनेगा, ये है हमारा लैन और ये है हमारा वैन। अब लैन टू वैन पे काम करने के लिए, यानी कि हमारे डेटा को इंटरनेट इंटरनेट तक पहुंचाने के लिए कौन हमारी हेल्प करेगा, ये माइक्रोटिक। तो हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर करनी है, हमें इस माइक्रोटिक के ऊपर करनी है, ताकि हमारे लैन में जितने भी 100 लोग इंटरनेट चला रहे हैं उनका ट्रैफिक डायरेक्ट माइक्रोटिक के पास आए, और माइक्रोटिक उसको डायरेक्ट कहाँ भेज दे, इंटरनेट के पास। और उसके बाद वो लोग फेसबुक चलाएंगे, गूगल चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, कोई भी इंस्टाग्राम या कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट चलाएंगे, अपना सर्वर एक्सेस लेंगे। वो आगे आईएसपी का काम है कि वो आईएसपी उसको वहाँ तक कैसे पहुँचाएगा। तो बेसिकली जो हमारा काम है वो क्या है, माइक्रोटिक तक यूज़र्स का डेटा पहुँचाना और माइक्रोटिक से इंटरनेट तक पहुँचाना, बस। तो बेसिकली हमें यही करना है इस वीडियो के अंदर। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ आपको कि आप लोग किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। सो मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अभी, और मैं ये सब कुछ अपने VMware में करने वाला हूँ। मैंने सब कुछ इंस्टॉल करा हुआ है, तो मैं अपना VMware ओपन कर लेता हूँ। और VMware भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप वर्चुअली अपने कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारी सीरीज़ बना सकते हैं और काफ़ी सारे डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये पालो अल्टो यूज़ कर रहा हूँ, या उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, ईव यूज़ कर रहा हूँ, और फोर्टीगेट फायरवॉल, सोफोस फायरवॉल, विंडोज़ एक्सपी, और ये फोर्टीगेट का सेकंड वर्जन है। तो अभी हम जो करने वाले हैं सब कुछ ईव के अंदर करने वाले हैं। तो मैंने ईव पे क्लिक कर दिया है और अब मैं ईव को स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी VMware स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से 2 मिनट ले लेता है। तो अगर आप लोग को ये VMware सेटअप करना नहीं आता है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ वी कैन इंस्टॉल द VMware completely, और हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द माइक्रोटिक इन आवर VMware, so I will definitely make the another video, separate video for you guys only, for your requirement only. So please try to understand कि यार हमें क्या करना है ना। उसकी अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो अभी हमारा ईव ओपन हो रहा है, ये वर्चुअली हमारा काम करेगा। तो जैसे ही ओपन हो जाता है वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये ओपन हो चुका है। तो इसकी आईपी क्या है, ये आईपी है 192.168.10.129। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ब्राउज़र में सर्च करेंगे, और इसने दिखा दिया है यूज़ कैसे करना है, HTTP के थ्रू करना है। मैं आपको शो करा देता हूँ कि ये कहाँ दिख रहा है। सॉरी, तो यहाँ हम देख लेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। और उसके अलावा ये है, ये यहाँ हमारी आईपी शो कर रहा है। और इसमें अगर आईपी देखो आप, तो ये है हमारी आईपी, ये ही आईपी। ठीक है, आईपी क्या है, 192.168.10.129। और क्या लिखा है, http:// ये आईपी सीरीज़। तो मैं अभी अपना मोज़िला फायरफॉक्स ओपन करता हूँ और यहाँ मैं टाइप करता हूँ http:// और 192.168.10.129। तो देखा आपने, ये सर्च करा तो ये हमारे पास ईव ओपन हो गया। अब हम इसे लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसा सेटअप करना है। ये मैंने पिछली वीडियो के लिए सेटअप करा था, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको डिलीट करता हूँ, और अब हम यहाँ एक नया सेटअप करेंगे। तो इस सेटअप के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हम एक्चुअल में कैसे वैन कनेक्शन और लैन कनेक्शन बना सकते हैं और लैन टू वैन ट्रैफिक पहुँचा सकते हैं। तो ये मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। और ये जो आईपी है ना, तो ये आईपी आपके लैपटॉप से पिंग भी होगी। देख लेते हैं। CMD ओपन करता हूँ मैं, और पिंग 192.168.10.129। अगर आप इसे पिंग करेंगे तो देख सकते हैं रिप्लाई भी आ रहा है इसका। ठीक है, लोकली हमारे वर्चुअल पीसी के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है ये, तो ये रिप्लाई भी कर रहा है।
हाँ 192.168 10.129 इज़ लाइव। सो आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ और इसको एग्ज़िट करते हैं। उसके बाद हम अपना डायग्राम अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले लेता हूँ एक माइक्रोटिक। एक पीस लेना है हमें। तो ये आ गया हमारे पास माइक्रोटिक, ठीक है। उसके बाद लेना है हमें एक इंटरनेट कनेक्शन। तो मैं जाता हूँ नेटवर्क पे। यहाँ मैं लेता हूँ क्लाउड ज़ीरो का नेटवर्क मैनेजमेंट, जिस पे इंटरनेट चल रहा है। और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ माइक्रोटिक से, ईथरनेट 1 से, ठीक है। और अब इसके नीचे जो हमारा लैन बनेगा, लैन नेटवर्क, तो हमारा जो पीसी है वो काफ़ी स्लो चलता है। तो मैं उस पीसी की जगह, चलो मैं पीसी लेता हूँ इसमें भी। कनेक्ट करा मैंने पीसी और सेव। सो अभी ये जो है हमारा, ये एक तरीके का लोकल नेटवर्क बन गया है। अभी मैंने एक ही यूज़र रखा है यहाँ आप चाहो तो 10 20 30 आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे रख सकते हो। तो अभी मैं इसको माइक्रोटिक को इससे कनेक्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन बन गया है और ये हमारा लैन नेटवर्क बन गया है, ठीक है, जिसमें एक ही पीसी है। हाँ, आप इसमें 100 यूज़र भी रख सकते हो। और ये हमारा माइक्रोटिक हो गया जिस पे हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो ये सारी डिवाइसेस अब मुझे ऑन करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी हो गई है। तो जब भी आप ईव में या वीएम में करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी करनी होती है, उसके बाद आप डिवाइसेस को ऑन करते हैं। अगर डिवाइसेस ऑन हो जाती है तो आपको कनेक्टिविटी करने की परमिशन नहीं मिलती है। तो हमेशा याद रखें, पहले आपको कनेक्टिविटी करनी है, उसके बाद आपको इसे ऑन करना है। तो ये 2-4 मिनट लेता है ऑन होने में। जब तक मैं अपना नेटवर्क फिर से बना लेता हूँ एक बार। तो नेटवर्क बना लेते हैं फिर से, सेम नेटवर्क। ये हमारा माइक्रोटिक हो गया और ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ठीक है। और ये हमारा लैन एरिया हो गया, सॉरी, ये हमारा लैन एरिया हो गया, जिसमें भी हमारा एक ही यूज़र है, ये यूज़र, ठीक है। तो इसे हमने ऐसे करके कनेक्ट किया हुआ है। ये समझ लीजिए आप, एक यूज़र बैठा है और इसको इससे कनेक्ट कर रखा है, इसको इससे कनेक्ट कर रखा है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस पोर्ट को DHCP क्लाइंट बनाने वाला हूँ। DHCP क्लाइंट, और इस पोर्ट पे एक DHCP सर्वर चलाने वाला हूँ। DHCP सर्वर, जिसकी IP सीरीज रहेगी 192.168.50.0/24, ठीक है। और यहाँ हम करेंगे क्या, नेट। यहाँ हम करेंगे नेट, ताकि हमारे लैन यूज़र का ट्रैफिक सारा वैन पे जा सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारी डिवाइसेस भी ऑन हो गई होगी। तो मैं चलता हूँ यहाँ, और मैं इसको CLI से भी चला सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको CLI बताऊँगा इसकी पूरी ना। तो अभी मैं इसको GUI से ही करता हूँ। और उसके बाद चलते हैं हम अपने विनबॉक्स को ओपन करने, जिसकी मदद से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, जिसकी मदद से हम इसे ओपन कर सकते हैं। ये मैंने डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये माइक्रोटिक जो है हमारा, यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने वो क्लिक करा मैक एड्रेस को और अप्लाई कर दिया। और अभी आप देखेंगे अगर यहाँ, तो शायद कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। अभी मैं जाता हूँ IP और DHCP क्लाइंट में। तो यहाँ ईथरनेट 3 को DHCP क्लाइंट बनाया हुआ है। तो मैं इसे काट देता हूँ। अभी हमें फर्स्ट काम हमारा क्या है, हम आ जाते हैं अपने पेंट के ऊपर फिर से। पहला काम है हमारा DHCP क्लाइंट बनाना इंटरनेट से, ताकि हमारे माइक्रोटिक तक इंटरनेट आ जाए। इस इंटरनेट कनेक्शन से हमारे माइक्रोटिक तक इंटरनेट आ जाए पहले, ठीक है। मैं आपकी उसके लिए इससे बना देता हूँ। ये माइक्रोटिक को इंटरनेट देगा
और माइक्रोटिक इन लैन यूज़र को इंटरनेट देगा। ठीक है, अब लैन यूज़र अगर अपना इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे ही वो रिक्वेस्ट भेजेंगे google.com की रिक्वेस्ट माइक्रोटिक के पास जाएगी और माइक्रोटिक उसको क्या कर देगा, आगे इंटरनेट के पास पहुंचा देगा। अब वो जहाँ भी गूगल का सर्वर है, ये हमारे इस इंटरनेट वाले का काम है उसको वहाँ तक पहुँचाने का। ठीक है, तो ये इसका काम है कि वो किस रास्ते पहुँचाएगा, इस रास्ते पहुँचाएगा या इस रास्ते पहुँचाएगा। तो इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो काम है सिर्फ हमारा इसके अंदर काम है। इंटरनेट तक अगर हमारा ट्रैफिक पहुंच जाता है, बाकी काम आईएसपी का होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का होता है। दे विल ट्रबल शूट कि कहाँ इशू हो रहा है और क्यों इशू हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो यार। और मैं आ जाता हूँ अपने डायग्राम पे और यहाँ तो सबसे पहले हमें बनाना है क्या, DHCP क्लाइंट। इसको फिट करता हूँ पहले तो मैं, डन है। तो आईपी में आना है आपको, उसके बाद आना है DHCP क्लाइंट में और यहाँ ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको सबसे पहले इंटरनेट का वो जो पोर्ट है, जिस पोर्ट पे आपने इंटरनेट की केबल लगा रखी है, ठीक है, ईथरनेट केबल 1 लगा रखी है, तो यहाँ पे आपको ईथरनेट 1 पे सेलेक्ट करना है। ईथरनेट 1 आपको यहाँ ये शो करता होगा, ये रहा ईथरनेट 1। ठीक है, ये इंटरनेट की जो केबल आई है, ये केबल आके हमारे माइक्रोटिक के 1 नंबर पोर्ट पे लगी है। तो हमें यहाँ पर माइक्रोटिक के 1 नंबर पोर्ट को क्या बना लेना है, DHCP क्लाइंट बना लेना है। अप्लाई कुड नॉट, ओके 1 मिनट। अच्छा, ये पहले बन चुका है तो मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ। IP DHCP क्लाइंट, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं, ऐड करोगे आप तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोर्ट नंबर 1 सेलेक्ट करना है और उसके बाद अप्लाई और ओके। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये इंटरनेट से इसने IP ले ली है 192.168.10.130। अगर अभी मैं कुछ भी पिंग करता हूँ तो क्या पिंग हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम पिंग करते हैं google.com। ठीक है, मैं सबसे पहले देख लूँ मेरा इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं। इंटरनेट मेरे लैपटॉप में कनेक्ट नहीं है, बिकॉज इसको इंटरनेट मेरे लैपटॉप से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं लैपटॉप को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोन डेटा से। ये कर दिया मैंने, फ़ोन डेटा ऑन, हॉटस्पॉट, और उसके बाद ऑफ करके ऑन करता हूँ कनेक्ट। ओके, तो अभी अगर मैं पिंग करता हूँ 8.8.8.8, क्या ये पिंग हो रहा है, यस। तो अभी हम पिंग करते हैं google.com को, google.com। तो आपको समझ आ रहा होगा अभी तक हमने क्या करा है, ये इंटरनेट कनेक्शन है। इंटरनेट कनेक्शन से हमने क्या करा, एक केबल को ईथरनेट 1 पे लगा दिया। ईथरनेट 1 पे जब हमने कनेक्ट कर दिया तो अब हमने इस पोर्ट को ये बता दिया कि आप इंटरनेट ले लो, अपने आप ऑटोमेटिक ले लो आप इंटरनेट। तो उस पोर्ट पे जो केबल लगी थी वो समझ गया कि मुझको ऑटोमेटिक इंटरनेट लेना है, तो उसने ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट किसको भेजी, ISP को भेज दी। ISP को जैसे ही उसने IP के लिए रिक्वेस्ट भेजी, इंटरनेट के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो उसने उसको एक IP दे दी, IP एड्रेस दे दिया। तो इसको IP एड्रेस क्या मिला है, अभी हमने चेक करा था, ये मिला है इसको IP एड्रेस। ये स्टेटस में आते हैं हम तो ये दिख रहा है इसको IP एड्रेस 192.168.10.131। ठीक है, और इसके लिए गेटवे क्या है 10.2, यानी कि गेटवे क्या, इसका जो इंटरनेट लाइन का जो IP एड्रेस है वो है 10.2। तो क्या ये माइक्रोटिक 10.2 तक पहुंच पा रहा है यहाँ से, तो पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पिंग करके चेक कर लेंगे। तो हम आते हैं यहाँ और टर्मिनल पे हम यहाँ करते हैं पिंग 192.168.10.2। हमने इसको पिंग करा, यस, हम गेटवे तक पहुँच रहे हैं। अब हम ISP तक पहुँच गए, तो अब हम पिंग करके देखेंगे अपना सीधा google.com। तो आप देख सकते हो ISP तक हमारा डेटा जा रहा है और ISP उसको कहाँ भेज रहा है, गूगल पे भेज रहा है। अब ISP गूगल तक कैसे पहुँचा रहा है, ये ISP का काम है, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है हमारे ट्रैफिक को ISP तक पहुँचा देना, बस। ट्रैफिक सही होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। ISP ऑलरेडी उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। उसमें कुछ भी इलीगल मिला, कुछ भी फ्रॉड मिला, तो ISP वहाँ ड्रॉप कर देगा। बार बार अगर आप उस चीज़ के लिए हिट करेंगे तो आपको एक कई बार गूगल का कैप्चा शो करता होगा
कैप्चा सेलेक्ट करने के लिए कई बार कार देता है, या क्रॉस रोड देता है, या रेड लाइट देता है। तो ऐसे कुछ कैप्चा आपको देने लग जाता है, गूगल समझ जाता है कि ये कोई ना कोई फ्रॉड बंदा है जो बार बार हीट कर रहा है। तो अगर आप ह्यूमन हो, आप सही बंदे हो, तो आप इस कैप्चा को फिलअप करो। अगर कोई सर्वर बार बार हीट करता है, जैसे कुछ लोग कुछ इलीगल काम करने के लिए सर्वर पे अपने कुछ प्रोग्रामिंग चला देते हैं, वो सर्वर बार बार गूगल पे हीट कर करके उसको चेक कर रहा होता है कि कब मैं इसके इसके ऊपर अपना कब्जा कर लूँ, इसको हैक कर लूँ। सो वो करने के लिए जब आप करते हैं, कोई भी सर्वर करता है, तो गूगल क्या करता है, कैप्चा लगा देता है। तो कैप्चा वही बंदा भर सकता है जिसके पास ब्रेन होता है। तो कैप्चा वहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आता है कि अगर आप ह्यूमन हो तो आप इसे फिलअप करो। अगर सर्वर होगा तो सर्वर को तो पता ही नहीं ना कि मुझे क्या सेलेक्ट करना है। सर्वर के ऊपर तो बस एक काम दे दिया गया है सर्वर को कि आप बस इसे हीट करते रहो, और जैसे ही आपको ये फ्री मिले आप इस पे कब्जा कर लेना। ठीक है, तो ये था इंटरनेट तक का काम। अब हम करेंगे अपने माइक्रोटिक से नीचे लैन यूजर तक का काम। अब हम चलते हैं माइक्रोटिक से नीचे का काम करने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या नेटवर्क बनाया है, इसके लिए हमने नेटवर्क बनाया है 192.168.50.0/24 का। तो मैं आता हूँ यहाँ। सबसे पहले आईपी में आना है, आपको एड्रेस में आना है। ठीक है, यहाँ आपको एड्रेस में ऐड करना है 192.168.50.1/24। वन क्यों रखा है मैंने, नेटवर्क ज़ीरो का है, और हमने जो वो रखा है गेटवे वो वन है। तो ये हमारा ये माइक्रोटिक की आईपी है, और हमारे लैन यूज़र के लिए गेटवे है। अगर उनको इंटरनेट तक पहुंचना है तो उनको ये गेटवे पे पहले पहुंचना होगा। ठीक है, और वो जब हमारे माइक्रोटिक तक आ जाएंगे, गेटवे तक आ जाएंगे, तो हमारा जो माइक्रोटिक है फिर वो उसको इंटरनेट तक भेजेगा। तो अब पोर्ट नंबर 2 सेलेक्ट करता हूँ मैं, और अप्लाई और ओके। तो हमने जो 192.168.50.0 का नेटवर्क रखा था वो यहाँ देख सकते हो आप, ऑटोमेटिक इसने फिलअप कर लिया है, क्योंकि हमने सीरीज़ बिल्कुल करेक्ट दी है। अब मैं आता हूँ डीएचसीपी सर्वर में। डीएचसीपी सर्वर में नेटवर्क में आने के बाद मुझे यहाँ एड्रेस देना है 192.168.50.0/24, और नीचे गेटवे बताना है 192.168.50.1। ये हो गया गेटवे। उसके बाद हमें डीएनएस देना है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है, तो डीएनएस की ज़रूरत पड़ती है उस वेबसाइट का होस्ट रिजॉल्व करने के लिए। ये मैंने दे दिया है 888 और 8844। अगर मैं आपको अपने लैपटॉप में भी दिखाऊं, तो मेरे लैपटॉप के अंदर भी आपको गेटवे और डीएनएस दोनों मिलेगा। तो मैं अपने फ़ोन डेटा से कनेक्ट हूँ, मैंने वाईफाई अपना ओपन करा और डिटेल्स पे क्लिक करा। यहाँ देख सकते हो आप, ये मेरी आईपी है 192.168.43.48। ठीक है, और ये मेरा गेटवे है 43.1, और डीएनएस सर्वर भी इन्होंने सेम बना रखा है। ये फ़ोन डेटा है। तो ये मेरा एयरटेल का फ़ोन है, नंबर है। तो एयरटेल वालों ने कैसे उसकी आगे रीचेबिलिटी कर रखी है वो एयरटेल वाले ही बता पाएंगे। तो इन्होंने डीएनएस सर्वर क्या दे रखा है 43.1। तो वैसे ही मैंने डीएनएस सर्वर क्या दे दिया है, मैंने डीएनएस सर्वर दे दिया है 888 और 8844, जो कि स्टैंडर्ड और गूगल का होता है। ये अगर मैं इसको पिंग भी करता हूँ अपने लैपटॉप से, ये रीचेबल भी होगा अपने लिए। पिंग 192.168, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 8.8.8.8। आप देख सकते हैं ये पिंग हो रहा है। अब मैं करता हूँ 8844 को 4.4, ये भी पिंग हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये स्टैंडर्ड होता है, गूगल का है ये, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने दे दिया। इसके बाद हम बनाएंगे पूल। पूल के अंदर हमें आईपी कितनी रखनी है, मतलब 250 आईपी अगर हम रखते हैं तो हमारे नेटवर्क में 250 लोग आएंगे, अपना लैपटॉप निकालेंगे, लैन केबल लगाएंगे, उनको ऑटोमेटिक एक आईपी मिल जाएगी जो भी फ्री होगी। वाईफाई कनेक्ट करेंगे, उनको वाईफाई के थ्रू एक ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगी जो भी फ्री होगी। तो हम जो पूल बना रहे हैं उसका नेम पूल ही रखते हैं, पूल 1। और सीरीज देता हूँ 192.168.50.2 से लेके 192.168.50.254, यानी कि आप देख सकते हैं 253 आईपीज़ का पूल बना दिया है। अप्लाई और ओके। तो 253 डिवाइसेस हमारे नेटवर्क में कनेक्ट हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 253 यूज़र्स, 253 लोग कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक बंदा आया, उसके पास फ़ोन हुआ
उसने फ़ोन कनेक्ट करा तो एक आईपी उसको मिल गई, उसने लैपटॉप कनेक्ट करा तो एक लैपटॉप को भी मिल गई। तो जब दो आईपी उसको मिलेगी तो अगर दो हम काउंट करेंगे तो 253 आईपी के लिए मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 125 लोग इंटरनेट चला पाएंगे। तो मैं यही बताऊंगा कि 253 डिवाइसेस को इंटरनेट यानी कि आईपी मिल सकती है इस पूल से। 253 आईपी के लिए ये पूल बना है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं वापस से डीएचसीपी सर्वर में, और डीएचसीपी में ऐड करेंगे यहाँ। यहाँ सर्वर नेम देना है 1, इंटरफेस देना है पोर्ट नंबर 2, और लीज टाइम देना है हमें यहाँ, मैं लीज टाइम देता हूँ 3 आवर। लीज टाइम होता है कि हर उतनी देर के बाद, हर 3 घंटे के बाद ये हमारी डिवाइस को, जो भी नेटवर्क में कनेक्ट होता है, उसको एक रिक्वेस्ट भेजता है कि क्या आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, क्या आपको आईपी की अभी भी ज़रूरत है। अगर वो डिवाइस इंटरनेट चला रहा है या अलाइव है, एक्सेस में है, तो वो बोलेगा यस। अगर वो बंदा नेटवर्क से चला गया है, सपोज आपके यहाँ 50 लोग आए, उन्होंने 100-150 डिवाइसेस अपनी कनेक्ट करी, किसी के पास 2 फ़ोन है, किसी के पास 3 फ़ोन है, किसी के पास लैपटॉप भी है, फ़ोन्स भी है, तो ऐसे करके 150 लोगों ने कनेक्ट कर लिया। बाद में 150 लोग और आ गए, तो क्या वो लोग इंटरनेट चला पाएंगे? 253 लोग डिवाइसेस को तो आईपी मिल जाएगी, उसके बाद आईपी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, कुछ लोग जो पहले 150 आए थे उसमें से हो सकता है 60-70 लोग चले जाएंगे। तो जब चले जाते हैं तब भी जो सर्वर होता है हमारा डीएचसीपी का, वो 3 घंटे तक अपने पास आईपी को स्टोर करके रखता है, उसकी आईपी को हटाता नहीं है। तो 3 घंटे के बाद जब वो सेम आईपी को रिक्वेस्ट भेजेगा कि क्या आप जिंदा हो, आप मेरे नेटवर्क में हो, तो वो बंदा, अगर वो उसकी वो डिवाइस रिप्लाई करेगी कि हाँ आई एम स्टिल इन द नेटवर्क, मैं अभी भी नेटवर्क के अंदर हूँ, तो ठीक है। अगर उसका रिप्लाई नहीं आया 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद, वो उस आईपी को फ्री कर देगा। फिर कोई नया बंदा जब रिक्वेस्ट भेजता है तो वो वही आईपी उस बंदे को दे देता है। तो ये होता है डीएचसीपी का प्रोसेस। सर्वर नेम मैंने 1 रख दिया है, पोर्ट नंबर 2 के ऊपर करा है हमने, और लीज टाइम 3 आवर, और पूल हो गया हमारा 1। ये पूल हमने यहीं जो अभी हमने बनाया था वही पूल बस हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, पूल 1, और ये मैंने यहीं पर पूल 1 सेलेक्ट कर लिया है। अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो ये था हमारा डीएचसीपी सर्वर का काम। तो अभी क्या करा है हमने, इस नेटवर्क को हमने कनेक्ट कर लिया है, इस पूरे नेटवर्क को हमने बना दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये करना है नेटिंग 3 नंबर पे, जो लास्ट काम है हमारा, ताकि हमारा जब कोई भी यूज़र जब इंटरनेट तक आएगा, माइक्रोटिक तक इंटरनेट की रिक्वेस्ट भेजेगा, तो माइक्रोटिक देखेगा हाँ हाँ मेरे पास एक रूल लगा हुआ है कि अगर अब मेरे पास कोई इस सीरीज़ की आईपी आती है तो मैं उसको इंटरनेट पे भेज दूंगा, ठीक है। तो वो इसको इंटरनेट के ऊपर भेज देगा सीधा। तो उसके लिए मैं एक रूल बना देता हूँ। तो अभी तक हमने क्या करा था, सबसे पहले तो हमने डीएचसीपी क्लाइंट बनाया था, मैं आपको दिखाऊं तो ये, जिसकी वजह से हमारे माइक्रोटिक पे इंटरनेट आना स्टार्ट हो गया। तो पिंग 8.8.8.8, और उसके बाद है google.com। सो google.com भी पिंग हो रहा है, और इसके बाद आ जाता है हमारा आईपी एड्रेसेस में। अगर हम देखें तो हमने अपने लोकल गेटवे, लोकल नेटवर्क के लिए रखा था 192.168.50.1/24 का नेटवर्क। उसके बाद डीएचसीपी सर्वर में ये हमने सर्वर बनाया था एक, जिसके लीज टाइम रखा था हमने 3 आवर। 3 घंटे के बाद ही वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा आपको पूछने के लिए कि आप नेटवर्क में हो या नहीं हो, ताकि वो उस आईपी को फ्री कर सके। और नेटवर्क्स में हमने बनाया था, उसका नेटवर्क दिया था, गेटवे दिया था, और डीएनएस दिया था। इस डीएनएस की मदद से ही वो लैन यूज़र को गूगल तक या किसी भी वेबसाइट तक पहुंचाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने बनाया था एक पूल, इस पूल के अंदर अंदर से ही वो आईपी दे सकता है बस। इस पूल के बाद से कोई आईपी नहीं दे सकता वो। और अगर ये आईपी का पूल फिलअप हो जाता है, पूरा भर जाता है, रिक्वायरमेंट नहीं बचती है, तो वो रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, डिनाई कर देगा, ओके। तो इसके बाद अब हमें काम क्या है, अब हमें करनी है नेटिंग। तो हम जाएंगे आईपी में और फायरवॉल में, और इसमें जाने के बाद हम आएंगे नेट में। नेट में आने के बाद हम यहाँ ऐड करेंगे, और हम आ जाएंगे जनरल पे। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है सोर्स। सोर्स करने के बाद यहाँ हमें देना है अपना लोकल पूरा नेटवर्क 192.168.50.0/24। और एक्शन में आके हम सेलेक्ट करेंगे क्या, मास्करेड। मास्कुरेड रूल। अब मैं बताता हूँ आपको ये सोर्स क्यों सेलेक्ट करा है हमने। सोर्स होता है जहाँ से हमारा डेटा जा रहा है। तो हमने क्या बताया है इस रूल के अंदर,
इस पूरे नेटवर्क में कितने आईपीज हैं? 250 आईपीज है, 253 आईपीज का पूल है पूरा। तो इस पूरे पूल में से आपको कोई भी आईपी आती है सोर्स, जैसे मैं जैसे google.com करता हूँ ना, तो एक पैकेट तैयार होता है हमारा। हमारा इस तरीके का एक पैकेट होता है जिसमें लिखा होता है सोर्स और डेस्टिनेशन। मैं आपको छोटा सा बस पैकेट बता रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके का पैकेट होता है। इसमें काफ़ी सारा कंटेंट होता है, मैं आपको बस बताने के लिए दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये सबसे पहले होता है हमारे पास क्या, SRC सोर्स, और उसके बाद होता है DST डेस्टिनेशन। तो सोर्स में क्या जाता है, सोर्स में जाता है कि किस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी है, 192.168.50.50 आईपी वाले बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी है। मान लो 50 किसी लैपटॉप को आईपी मिली है, उसने क्या चीज़ सर्च करा है, उसने सर्च करा है google.com। तो ये पैकेट जो तैयार होता है ये बताता है कि ये बंदा है, सोर्स की आईपी क्या है, ये आईपी है, और डेस्टिनेशन यानी कि वो कहाँ तक जाना चाहता है, वो जाना चाहता है google.com तक। google.com उसने सर्च करा है। तो हम इस रूल के अंदर क्या बता रहे हैं, हम इस रूल के अंदर बता रहे हैं कि सोर्स में 192.168.50.0/24 यानी कि पूरी आईपी का पूल, आपको सोर्स में कोई भी आईपी मिले तो उसको आपको कहाँ भेज देना है, मास्करेड कर देना है। मास्करेड का मतलब होता है इंटरनेट पे भेज देना है। बस आपको उसको इंटरनेट पे भेज देना है, इंटरनेट पे चला जाएगा। अब उसका पैकेट अच्छा है बेकार है, क्या करना चाहता है वो नेटवर्क पे, वो सब कुछ उसका आईएसपी चेक करेगा, वो उसको फिल्टर करेगा फिर। तो वो फिल्टर करेगा और वो इस चीज़ को चेक करके फिर बताएगा कि हम इस पैकेट को सक्सेसफुली जाने देना चाहते हैं या नहीं जाने देना चाहते हैं। मैं इस रूल को डिलीट करता हूँ, मैं फिर से आपको बना के दिखाता हूँ। आपको ऐड करना है, आपको चेन में सेलेक्ट करना है सोर्स, सोर्स की कोई भी चेन हो, सोर्स एड्रेस हो पूरा 192.168.50.0/24, ये हुआ। इसमें से कोई भी आईपी हो, यानी कि हमने 250 आईपी का जो पूल बनाया है, कोई भी आईपी हो इसमें, उसको वो कहाँ भेज देगा, सीधा मास्कुरेड कर देगा। मास्कुरेड का मतलब सीधा उसको इंटरनेट के ऊपर वो फॉरवर्ड कर देगा। अप्लाई एंड ओके। तो अभी जैसे ही हमारा यूज़र नेटवर्क में कनेक्ट होगा, कनेक्ट होते ही एक रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे माइक्रोटिक को, हमारा माइक्रोटिक उसको रिप्लाई में क्या देगा, एक आईपी सीरीज देगा। मान लो उसने आईपी दे दी है ये 192.168.50.50, ये आईपी दे दी है, और गेटवे दे दिया है 192.168.50.1, डीएनएस दे दिया है 8888 और सेकंड डीएनएस 8844। ये देने के बाद अब ये यूज़र इंटरनेट चलाएगा तो उसने सर्च करा google.com। google.com जैसे ही सर्च करेगा तो उसके पास एक पैकेट तैयार हो जाएगा। क्या पैकेट, ये पैकेट, वो ये पैकेट भेजेगा कहाँ, हमारे माइक्रोटिक को। माइक्रोटिक देखेगा अच्छा 192.168.50.50 को google.com पे जाना है, यानी कि इंटरनेट पे जाना है। तो हमारे पास एक रूल बना हुआ है नेटिंग का, ठीक है। तो उस रूल के अंदर हमने क्या बता रखा है कि कोई भी आए तो उसको इंटरनेट के ऊपर भेज देना इस सीरीज़ की आईपी से, इस पूरी की पूरी सीरीज से। तो ये आईपी जो है 50 वो इसी सीरीज से है, तो वो इसको कहाँ भेज देगा, सीधा इस इंटरनेट के ऊपर भेज देगा। तो यही थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में। जल्दी मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें आप।